Hello everyone, welcome to Shunya IS and welcome to this lecture. I'm your faculty and my name is Lavanya. So, today the lecture that we are going to have is going to be on BRICS and not just BRICS actually. It is going to be BRICS plus. न्यूज में आपने अभी तक सुन लिया होगा कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो चुका है. It was earlier a 5-member body. It has now become an 11-member body. Great. The developing powers from each developing continent, that is Asia, Africa, and Latin America, have been added to this organization. And hence it has become BRICS Plus. But as UPSC aspirants, what do you have to extract out of this information? From prelims perspective, mains perspective, and when you cross mains, even in interview, you will be asked about BRICS because it's such an important organization. So I don't need to tell you that BRICS is an important topic when it comes to GS2 IR portion. You can get a 10 or a 15 marker out of this. So after this lecture, you will be able to understand what exactly you need to write in the 10 or 15 marker when you get a question, any question about BRICS. ठीक है जी. Now, why has BRICS been in news? Very, very commonsensical. There was the Johannesburg Summit. Johannesburg Summit happened. And the major outcome of Johannesburg Summit has been the expansion of BRICS. The media went crazy. Everyone went crazy that BRICS as the representative of not just the emerging world order, not just the global south, but also having a vision for an equitable world order. Equitable world order. और अब BRICS में एक्सपेंशन से पहले देयर वर अबाउट 22 प्रपोजल्स जिसको सीरियसली कंसिडर किया जा रहा था फॉर एडमिशन इनटू ब्रिक्स. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज दैट ब्रिक्स हैज बीन एक्सपैंडेड एंड दैट इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स. सो expansion of membership has happened. Argentina, Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi and the United Arab Emirates, that is UAE. अब कैसे याद करें इसको? हाउ डू वी रिमेंबर इट? देखो, इस बार के ब्रिक्स का जो थीम था दैट वाज ब्रिक्स एंड अफ्रीका. ठीक है, ब्रिक्स एंड अफ्रीका, पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म. सो फैंसी वर्ड्स, यू डोंट नीड टू राइट इट एग्जैक्टली इन द पेपर, बट मोटा मोटा ये पता होना चाहिए ब्रिक्स एंड अफ्रीका वाज द गोल. इसका निमोनिक बनाओ. इसका निमोनिक क्या है? जो ये एक्सपेंशन हुआ है उसका निमोनिक हम क्या बना सकते हैं? आई फॉर ईरान, सी, एस फॉर सऊदी अरेबिया, ई फॉर इजिप्ट एंड ई फॉर इथियोपिया, ए यू, Argentina and UAE. So ICAU. AU means African Union maybe. तो आपका ये निमोनिक बन गया. इससे आपको याद रह जाएगा कि कौन से मेंबर्स ब्रिक्स में इंक्लूड हुए हैं इस बार. ब्रिक्स इज सीइंग AU, ICAU. ये याद रह जाएगा. इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी. So this is the major result of Johannesburg Summit. And when you write the answer, मैं हमेशा ये बताती हूँ कि जब भी आप मेंस का कोई आंसर लिख रहे होते हैं उसके 2-3 तरीके होते हैं शुरू करने के. एंड इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन सो मच इन न्यूज, one of the good ways of introducing that question is that BRICS was recently expanded in the Johannesburg Summit, making it more inclusive and a relevant representation of the global south. This can be something like this can be your introduction. Now, major highlights, as I told you, the theme was BRICS and Africa, very important. और इसमें कभी भी मेंस में पूरा थीम लिखने की गलती मत करना. इट विल जस्ट टेक अप योर स्पेस, टेक अप योर टाइम, टेक अप योर मेंटल स्पेस.
और उससे कुछ वैल्यू ऐड नहीं होगी, ठीक है, आप इंडिया अफ्रीका लिख देना काफी होगा. 6 new members admitted, you know that already. Johannesburg 2 declaration, Johannesburg 2 declaration जो है, सो बेसिकली ब्रिक्स का एक सिंपल सा फंडा है और इसमें क्रिटिसिज्म भी आता है ब्रिक्स को, दैट ब्रिक्स वर्क्स ऑन कंसेंसस एंड दिस इज अ सिमिलैरिटी दैट ब्रिक्स हैज विद यूएनएससी P5. P5 में सबके पास क्या है, वीटो पावर है. सो यहां पर भी ब्रिक्स वर्क्स ऑन कंसेंसस और जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन वाज रीच्ड थ्रू अ कंसेंसस, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फ्रिक्शन आया था वो यही आया था कि किन 6 स्टेट्स को एडमिट किया जाए. देयर वर टॉक्स ऑफ नाइजीरिया बीइंग एडमिटेड फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका से काफी सारे कंटेंडर्स थे, तो किसको किया जाए, है ना. एज अ डिप्लोमैट, एज अ ब्यूरोक्रेट सोच के देखो, व्हेन यू बिकम एन IFS ऑफिसर लेट्स से and you have gone to represent India into these BRICS summits and you have to make those negotiations, you know, that okay, no, India strongly feels that this country needs to be a part of BRICS. So that kind of outlook you should have. So consensus reaching was difficult, but it happened. Johannesburg. This is a very important point, and this is something which the unintended founder of BRICS, that is Jim O'Neill, गोल्डमैन सैच के जो बहुत बड़े नाम है, जिम ओनील, जिन्होंने ये ब्रिक एक्रोनियम बनाया था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ था. The one who said that these countries will be the leaders of the world and they'll take over the developed countries, he was actually laughing at the idea itself of a BRICS currency. ठीक है, he said it is so ridiculous that it's difficult to even comprehend कि BRICS countries ने ऐसे सोचा. So if you get a question on BRICS, तो आपको ये तो लिखना ही है कि लोकल करेंसी ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं. But if you get a question on the decline of US, the decline of US power, this is, I'm saying कि using knowledge from one paper, from one topic to another topic. तो ब्रिक्स से ली हुई नॉलेज आप डिक्लाइन ऑफ यूएस पावर में भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आप लिखते हैं डी डॉलराइजेशन. और डी डॉलराइजेशन का मतलब कि कंट्रीज आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम द रिलायंस ऑन डॉलर एंड दे आर ट्राइंग टू डिवाइस करेंसीज ऑफ देयर ओन. सिमिलरली यू कैन यूज दिस ब्रिक्स करेंसी वाला जो आर्ग्यूमेंट है ऑन द क्वेश्चन ऑन चाइना. अगर चाइना पर सवाल आता है कि कैसे चाइना ग्लोबली यूएस को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है, तो आप लिखिए कि चाइना इज एग्रेसिवली पुशिंग द एजेंडा ऑफ अ ब्रिक्स लोकल करेंसी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये होता है टू अंडरस्टैंड अ टॉपिक एंड टू यूज इट एट मल्टीपल प्लेसेस. ठीक है. देन ऑफ कोर्स ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल. ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल की जो है, इन्होंने 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है. नथिंग मेजर एज सच, बट यस, द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन ब्रिक्स हैव बीन वेरी वाइब्रेंट, स्पेशली बिटवीन इंडिया एंड चाइना. तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि इनकी जो इकोनॉमिक काउंसिल है. ठीक है. देन another very pressing issue that BRICS countries collaborate on is climate change. It is climate change, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो तो overall BRICS has an anti-West world view of climate issues. मतलब ब्रिक्स सारी ही कंट्रीज यही मानती हैं कि ये जो मैसिव पोल्यूशन है, ये जो क्लाइमेट चेंज इश्यूज हमें हो रहे हैं, वेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. तो हियर ब्रिक्स कंट्रीज इन द जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दिस. अब जब आपको सवाल आएगा तो आपने ये सारा एज इट इज नहीं लिखना है, बिकॉज योर आंसर हैज टू हैव दैट स्ट्रक्चर of okay, advantages, disadvantages. So some of the key features you have to take, of which one is this, one is the local currency, one is the theme BRICS and Africa. Others are generic points, तो उनको आप थोड़ा skip भी करोगे तो चल सकता है.
क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी इन ब्रिक्स, देखो सीधा सा फंडा ये है कि कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है. डिपेंड्स ऑन द नेगोशिएशंस दैट दीज कंट्रीज हैव विद ईच अदर एंड इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ करंट मेंबर्स बिलीव ऑन सर्टेन कंट्रीज, ठीक है. तो म्यूचुअल कंसेंसस से एंट्री होती है. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि एमर्जिंग इकोनॉमी होनी चाहिए. सो जापान कैन नेवर बी अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स, यू नो, it can never be a part of BRICS because it's already very developed. It's already very developed. It's the third largest economy. तो जापान कभी भी BRICS का हिस्सा नहीं होगा. Fine. Then it should have a economic size which should be substantial. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसी, मतलब कोई no disrespect to any country, but कोई आइवरी कोस्ट टाइप की कंट्री छोटी सी आ गई, मतलब जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है ग्लोबल अफेयर्स में, जिनकी कोई इकोनॉमी का साइज नहीं है. इट शुड नॉट हैपन, ठीक है. तो कंट्री का इकोनॉमिक साइज एक सब्सटैंशियल इकोनॉमिक साइज होना चाहिए, ठीक. एंड उस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अगेन आई विल से हियर, कल को हो सकता है पाकिस्तान एक इमर्जिंग इकोनॉमी बन जाए, या फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका बन जाए, या फॉर एग्जाम्पल म्यांमार बन जाए. म्यांमार और मे बी Israel. Israel is an emerging economy. It's not a developed country. Okay, some cities like Tel Aviv are very developed. Overall, some pockets are very technologically developed. But Israel ऐसा नहीं है कि it's a rich country. But अगर political stability नहीं है तो मुश्किल है कि ब्रिक्स में एंट्री मिलेगी. अब आप बोलोगे कि मैम रशिया बीइंग अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स, रशिया में काहे की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रशिया में तो कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है. आई एग्री कि इस समय रशिया के लीडर तो डिसाइडेड हैं, बट रशिया इज द कॉज फॉर मेजर ग्लोबल वायलेंस राइट नाउ. तो वो क्राइटेरिया इस समय रशिया नहीं मीट करता है, बट इट्स एन एग्जिस्टिंग मेंबर. सो वो एक बायस है. बट अगर किसी नए मेंबर को आना हो तो पॉलिटिकली स्टेबल मेंबर चाहिए. हमें ऐसा मेंबर नहीं चाहिए जो खुद के ही रोने खत्म नहीं हो रहे हैं एंड हु इज नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू द ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन. अब जैसे यहां पर इकोनॉमिक साइज में जो आप लिख सकते हैं, अगर आपसे सवाल इस तरीके का आया, इफ यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन कि शुड ब्रिक्स बी फर्दर एक्सपैंडेड, और if you get a question कि the expansion of BRICS has led to the decline in the original agenda of BRICS, ऐसा कुछ करके सवाल है आपको, तब आप लिखेंगे कि क्या क्या चीजें हम देखते हैं ब्रिक्स में एंटर करते हुए. तो $400 बिलियन की जीडीपी होनी चाहिए एक कंट्री की मिनिमम. ये सजेस्ट किया था इंडिया ने कि अगर किसी कंट्री की जीडीपी $400 बिलियन से कम है, हम 5 ट्रिलियन की तरफ एम कर रहे हैं. जस्ट रिमेंबर दैट चाइना इज अबाउट 19 बिलियन राइट नाउ. सो उस कंपैरिजन में ये देखो कि अगर कोई 400 बिलियन की भी इकोनॉमी नहीं है तो वो कैसे ग्लोबल अफेयर्स में कंट्रीब्यूट करेगी. सो ये इंडिया का आइडिया था, ठीक है. तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, छोटा सा आप चार्ट बना सकते हो, दैट्स इट. नाउ यू सी हियर, एज आई टोल्ड यू, द 3 डेवलपिंग कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, South America, that's Africa, and there's then of course Asia. So a lot of scope for connectivity is there, a lot of scope for trade is there, a lot of scope for diaspora exchange is there. अगर आप यहां पर देखो, पूरा इंडो पैसिफिक आप कवर कर सकते हो, पूरा साउथ अटलांटिक भी आप कवर कर सकते हो, विच इज अ बिग डील. इट इज अ ह्यूज डील. आप पूरा का पूरा ये ओशनिक वाटर्स कवर कर सकते हो. एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ इट गोज टू चाइना. द क्रेडिट गोज टू चाइना बिकॉज चाइना हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेवी फॉर दैट मैटर. बट द थिंग इज कि धीरे धीरे ब्रिक्स इज गोइंग टूवर्ड्स ग्लोबल प्रेजेंस एंड दैट हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस. सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रिक्स प्लस, आपसे बहुत सिंपल सा सवाल पूछा जाएगा और सिंपल सवाल के सिंपल ही जवाब होते हैं. क्या सिग्निफिकेंस है ब्रिक्स प्लस का? द वन थिंग इज इकोनॉमिक्स. सो वन ग्रुप इज द G7.
which is a group of developed countries. They have their own agenda. They don't have any evil agenda, but their agenda does not suit the agenda of the global south. And that is why economic significance बहुत ज्यादा है अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो. किस तरह की इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हो सकती है? सिग्निफिकेंस कैन बी व्हेन इट कम्स टू गिविंग डेवलपमेंटल एड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलपिंग कंट्रीज, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स. सो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में इंडिया ने यह भी बोला था कि ब्रिक्स में आप ऐसे ही मेंबर्स को लेकर आए जिनका एग्जिस्टिंग ब्रिक्स कंट्री के साथ, ध्यान से सुनना, एग्जिस्टिंग ब्रिक्स कंट्रीज के साथ कम से कम $50 बिलियन का ट्रेड हो, कम से कम $50 बिलियन का ट्रेड हो. ठीक है, तो ये एक चीज है. तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ेगी. एंड राइट दीज पॉइंट्स एज इट इज. De-dollarization, as I discussed, bhai, India was able to overthrow the sanctions. India was able to dodge the sanctions that USA put on us. Does not mean that it was necessarily possible for the rest of the countries. चाहे वो रशिया के अगेंस्ट sanctions हो या फिर वो ईरान के अगेंस्ट sanctions हो, USA is an expert in sanctioning countries and controlling the world order using those sanctions. और अगर हम US डॉलर पे डिपेंडेंट रहे, हम का मतलब the emerging economies of the world, if we remain dependent on the US dollar, it is going to affect us. So we need to go for de-dollarization. Then energy cooperation. 3 very, very crucial West Asian countries: Iran, UAE, Saudi Arabia. They have been admitted into BRICS. And you all know that Iran and Saudi Arabia have been regional rivals, although right now their rivalry is subdued because of China brokered peace and whatnot. But फिर भी rivalry तो rivalry है. And they are energy dense. They are oil dense countries. So eventually they can be a challenger, not challenger, or an alternative mechanism to OPEC. कि कल को OPEC में टेंशंस हो गए तो कम से कम कंट्रीज यूनिलैटरली स्टेप्स नहीं लेंगे, है ना. देन जैसे ऑल्टरनेटिव टू ओपेक बताया ही मैंने. एंड रिकैपिटलाइजेशन ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक. व्हाट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक? इट इज द ब्रिक्स बैंक ओनली. ब्रिक्स बैंक ही है ना. तो ब्रिक्स बैंक को जब ऐसी इकोनॉमीज जो ऑयल डेंस इकोनॉमी है वो आकर कैपिटलाइज, रिकैपिटलाइज कर सकती, इट कैन गिव अस मनी एंड इनफ मनी टू डू वेल. और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो फर्दर लोन्स एक्सटेंड कर सकता है टू द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. ठीक है. देन another example is multilateral relations and engagements. We all know that no country in the BRICS grouping, earlier also and right now also, can be called developed as such. एक इकलौती बची थी रशिया. रशिया भी डेवलप नहीं थी. रशिया यूज्ड टू represent the second world which does not exist anymore, that is the communist world. ठीक है. तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ हम बन जाते हैं. और ये पॉइंट्स आपके बहुत अच्छे से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. पार्टनरशिप्स एंड एड्स, वी कैन कोलैबोरेट थ्रू पार्टनरशिप्स फॉर डेवलपमेंट. अभी जैसे हमारा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप का कॉरिडोर है, उसमें ब्रिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. आई मीन we should be aiming for such a world order जहां पर European countries want to be a part of BRICS. Why do just we want to be a part of the UNSCP5 or let's say the G7? Why don't these countries want to be a part of our organization? That is the thing, है ना. फिर रिफॉर्म ऑफ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, ये हमारा सदा का एजेंडा है. यूएनएससी नीड्स टू बी रिफॉर्म, WTO नीड्स टू बी रिफॉर्म, ऑल दिस नीड्स टू हैपन. न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो ये सिमिलर है. और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज द multipolar world order. We are not dependent on just the US or even on China also. अब concerns और issues देख लो भाई. सबसे पहले, even before reading anything, you would know that BRICS इतना जो शान से आगे बढ़े जा रहा है,
BRICS is being aggressively pushed by China. BRICS is being aggressively pushed by China, and there is a very high probability that BRICS might become the Chinese way for global hegemony. इंडिया देखता का देखता रह जाएगा और ये जो चाइना जी हैं, इट विल जस्ट एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज द ग्लोबल लीडर थ्रू ब्रिक्स. जो हम करना चाह रहे हैं चाइना करके चला जाएगा. दैट इज द प्राइमरी प्रॉब्लम. सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय यही है जो इंडिया के सामने है. ठीक है, तो कंसर्न्स यही है कि जैसे ब्रिक्स का पहले जो एजेंडा था वो इमर्जिंग इकोनॉमीज का था. अब ऐसा हो गया है कि इवन द वेरी एवरेज इकोनॉमीज, लेट्स से टॉक अबाउट अर्जेंटीना, मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस गोइंग ऑन, इवन वेरी एवरेज इकोनॉमीज हैव बीन इंडक्टेड. इजिप्ट फॉर दैट मैटर, कुछ ऐसे बहुत थ्राइविंग इकोनॉमी नहीं है वहां की, राइट? सो ब्रिक्स का एजेंडा ऐसे बोला जा रहा है कि थोड़ा सा वीकेंड हो गया है. देन कंसेंसस रीचिंग और भी डिफिकल्ट हो जाएगा एज वी गो फॉरवर्ड. अभी तो 5 मेंबर्स थे, बट नाउ 11 आर देयर. आगे जाके और एक्सपैंड होगा तो कंसेंसस रीचिंग और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा. एंड देन इट विल लीड टू चाइना सेंट्रिज्म और चाइना रशिया एक्सिस, जिसमें कि मेजर पावर्स ही जो हैं डिसीजन ले रही हैं. इंडिया को नहीं बुरा लगेगा अगर इंडिया भी इन पावर्स में इन्वॉल्व है, बट इंडिया इज जनरली नॉट वेरी एग्रेसिव इन एक्सक्लूडिंग अदर कंट्रीज. चाइना इज वेरी एग्रेसिव देयर. ठीक है, लैक ऑफ कॉमन अंडरस्टैंडिंग कि ब्रिक्स है क्या. ब्रिक्स यूज्ड टू बी एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. डज इट हैव अ पॉलिटिकल एजेंडा ऑल्सो, है ना? उस चीज पे कोई क्लैरिटी नहीं है. देन इंटरनल राइवलरीज, ऑफ कोर्स प्राइमरी राइवलरी इज इंडिया एंड चाइना. बाकी अब ईरान और सऊदी भी आ गए हैं तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है. एंड ब्रिक्स माइट एंड अप इन अ डेडलॉक लाइक सार्क. सार्क क्यों डेड है इस समय? सार्क को बोलते हैं कि सार्क कोमा में है. क्यों? इंडिया पाकिस्तान राइवलरी. सो ब्रिक्स बीइंग सच अ थ्राइविंग ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी अ विक्टिम ऑफ दीज राइवलरीज. ठीक है, जियो इकोनॉमिक में स्लगिश इकोनॉमीज को हमने बुला लिया है एंड ट्रेड डोमिनेंस बाय चाइना रहेगा ही रहेगा. जब इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है अपने पास, चाइना दैट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. मतलब आप खुद सोचो कि चाइना द लॉजिक of forming BRICS is the developing countries and the weaker economies which have high potential. China already second number पे है. हम जापान को नहीं ले रहे कि जापान is a developed country. China already is there. In nominal terms it is about $19 trillion. है ना? US is just about $25 trillion. तो उनका कुछ डिफरेंस भी नहीं है बहुत ज्यादा. ठीक है, देन ब्रिक्स करेंसी कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि आ पाएगी बिकॉज चाइना वॉन्ट्स टू ब्रिंग फॉरवर्ड द युआन, है ना, एज द कॉमन करेंसी. बट ऑफ कोर्स इंडिया इज नेवर गोइंग टू बी विलिंग फॉर दैट. जियो स्ट्रेटेजिक में अगर चाइना ने इस इंटेंशन को, मान लो एक सिनेरियो लो कि ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है एंड चाइना ब्रिंग्स अप द टॉपिक ऑफ सीपेक. चाइना ब्रिंग्स अप द टॉपिक ऑफ सीपेक. ठीक, अब दूसरी कंट्रीज कौन सी हैं भाई? वहां पे रशिया है, वहां पे साउथ अफ्रीका है, वहां पे ब्राजील है, अर्जेंटीना. दीज कंट्रीज, नन ऑफ दोज कंट्रीज इज अगेंस्ट चाइना. ठीक है, ठीक है, उसको चाइना के अनसस्टेनेबल डेट से सबको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, बट अगेंस्ट नहीं है कोई भी. तो सीपेक पे सबने बोल दिया हाँ 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 ठीक है, फाइन, गो फॉरवर्ड, जो भी है इट्स गुड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड व्हाट नॉट. इंडिया विल बी एक्सक्लूडेड एंड इंडिया विल कम अप एज द स्पॉइल स्पोर्ट ओवर हियर. ठीक है, तो ये इशू है. चाइना की डोमिनेंस इस ऑर्गेनाइजेशन को एक एंटी वेस्ट फ्लेवर दे रही है. ये पॉइंट्स लिखना. जब एक एंटी वेस्ट फ्लेवर जा रहा है तो जो कोलैबोरेशन हम वेस्ट के साथ कर सकते थे वो नहीं हो पाएगी बिकॉज वेस्ट विल थिंक ऑफ अस एज एंटागनिस्टिक्स. भाई जब हम G7 के बारे में सोचते हैं, डू वी थिंक ऑफ G7 एज एन एंटागनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन? नो, G7 is not an antagonistic organization. OECD is not an antagonistic organization because they are self-sufficient, ना?
दे आर हैप्पी विद इन देमसेल्व्स। हम बोल रहे हैं कि नहीं वेस्ट ये कर रहा है तो हमें ये करना चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे। दिस इज नॉट व्हाट इंडिया वांट्स, बट दिस इज समथिंग दैट चाइना इज टेकिंग फॉरवर्ड। ठीक है, दैट इज देयर। अब ब्रिक्स की जो एक्सपेंशन हुई है उसके इंडिया पे इंप्लीकेशंस एक बार देख लो। अच्छे इंप्लीकेशंस काफी सारे हैं, ठीक है, देयर इज नो डाउट कि ब्रिक्स के एक्सपेंशन के मोस्टली अच्छे ही इंप्लीकेशंस हैं। वील गेट मोर कंट्रीज टू कोलैबोरेट विद, वी विल बी गोइंग फॉर कंसेंसस बिल्डिंग। जहां पे इशू आएगा हमें वो बैलेंसिंग एक्ट में आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, रशिया बीइंग अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स, चाइना का स्टैंड तो बहुत क्लियर है ना, चाइना रशिया एक्सेस बहुत क्लियर है। But Russia being a part of BRICS and India having a neutral stance or an ambivalent stance towards Russia-Ukraine war, हम क्या बोलेंगे जब बाकी कंट्रीज इतना स्ट्रांगली रशिया के अगेंस्ट हैं और हम नहीं हैं? हाउ विल वी जस्टिफाई दैट? बट वो फिर भी इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि जब हमने यूनाइटेड नेशंस में जस्टिफाई कर दिया, या जस्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, ब्रिक्स कैन बी हैंडल्ड। ठीक है, तो कोई मेजर इशू है नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया जा सकता है न्यू डेवलपमेंट बैंक से, और इंडिया अपनी दी हुई एड को अच्छे से चैनलाइज कर सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल, WTO हो, WHO हो, स्पेशली WHO is highly China funded and that is why बहुत allegations लगे थे WHO पे कि पैंडेमिक डिक्लेयर करने में बहुत देरी की WHO ने, because pandemic was in China and WHO did not want to antagonize China, है ना? तो अगर इस तरीके की हेजेमनी इंडिया के पास होती है तो जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन, है ना? हम डेवलपमेंटल एड दे रहे हैं इजिप्ट को, इथियोपिया को, वी आर गिविंग इट टू अर्जेंटीना एंड व्हाट नॉट, that would be a good thing. बाकी बायलेटरल डिफरेंसेस अपने हैं ही चाइना के साथ, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट दिस कैन एक्चुअली बी अ फोरम टू रिजॉल्व दोज बायलेटरल डिफरेंसेस। तो ये एक पॉजिटिव डिप्लोमैटिक एक्ट दिखाता है और आपका एक डिप्लोमैटिक सिनेरियो, मतलब डिप्लोमैटिक आउटलुक सामने आता है व्हेन यू से कि ब्रिक्स कैन बी अ फोरम फॉर रिजॉल्विंग द इंडो चाइना डिस्प्यूट्स and the high tension relationships. And of course, reformed multilateralism, expansion of UNSC, ये तो primary agenda रहता ही है. So be it climate change, be it UNSC negotiations, everything, the voice of global south that the BRICS is will always stand by the agenda of the global south. तो global south G20 जितना represent करता है, कल को ब्रिक्स भी उतना ही रिप्रेजेंट कर सकता है। तो वे फॉरवर्ड क्या है इसमें? वे फॉरवर्ड में हमें बहुत क्लियरली ब्रिक्स का पर्पस डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे आप एक बात समझो, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, वेरी क्लियरली इकोनॉमिक, ठीक है। ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग, ठीक है, सबका अपना एजेंडा सेट है। तो ये सिर्फ नाम लिख देने से ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका +6 doesn't happen like that. We need to very clearly clarify कि क्या एजेंडा है ब्रिक्स का। Is it economic? Is it political? Is it social? Is it developmental? What is it? ठीक है, is it geostrategic? What is the agenda? ठीक है, अब जैसे ये एजेंडा वाली बात क्यों जरूरी है? क्योंकि क्वाड जिसको सब गा रहे थे कि ये तो जी एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो नाटो बन रहा है और ये है और वो है, वेरी क्लियरली वी सेड क्वाड इज नॉट अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज हैव इट क्लियर इन योर माइंड। क्लियर हो गई बात? तो ब्रिक्स का जो एजेंडा है उसको क्लियर करने की जरूरत है, मेंबरशिप क्राइटेरिया को क्लियर करने की जरूरत है। अब देखो, अब मैं बताती हूं कहां पे इंडिया मात खा जाता है। इतनी स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशंस चल रहे थे कि किस कंट्री को ब्रिक्स में लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। इट वाज सच अ गुड टाइम टू टेल द वर्ल्ड दैट पीपल, दैट कंट्रीज वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स एंड देयर इज अ स्पेसिफिक मेंबरशिप क्राइटेरिया जो हम करते हैं, बट देयर वाज नो PR।
there was no public relations that was built, there was no mass media involvement जैसे G20 में हुआ. अगर ब्रिक्स में आने के लिए कंट्रीज इतनी ज्यादा तत्पर थी, जो कि थी, हमें उस चीज को कैपिटलाइज करना चाहिए था टू लेजिटिमाइज ब्रिक्स. चाइना नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, हम कर सकते थे ना. वी नीड टू सेट क्राइटेरिया फॉर मेंबरशिप एंड वी, देखो सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल रिलेशंस में फोमो क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है, द फियर ऑफ मिसिंग आउट. फाइन, वी कैन नॉट लेट द वर्ल्ड बिलीव कि कोई भी चलती फिरती कंट्री जो है वो ब्रिक्स की मेंबर बन सकती है, जो कि है भी नहीं ऐसा. सो वी नीड टू पब्लिसाइज इट कि भाई ब्रिक्स में ऐसे ही नहीं एंट्री मिल जाएगी आपको, यू नीड टू बी अ सर्टेन वे. इंडिया को नहीं मिल रही ना यूएनएससी मेंबरशिप, क्या जस्टिफिकेशन है? तो हम भी नहीं देंगे. कल को पाकिस्तान आ जाएगा ब्रिक्स में, हमें ले लो, नहीं देंगे. ठीक है. स्ट्रेटेजिक डिवर्जेंसेस जो अपने हैं, स्पेशली इंडिया, चाइना एंड ईरान, सऊदी, वो एड्रेस करने हैं, बहुत जरूरी है वो एड्रेस करने. रशिया को लेके पूरे ब्रिक्स का क्या आउटलुक रहेगा वो एड्रेस करना जरूरी है. देन न्यू डेवलपमेंट बैंक is engaging in a lot of developmental work, but it is still not out there. Again, the PR issue. ठीक है. तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को स्ट्रेंथन करना है, फंड्स को मोबिलाइज करना है. वी नीड टू मोबिलाइज द फंड्स, वी नीड टू चैनलाइज द फंड्स. ऐसे भारी भारी शब्द यूज किया करो. Mobilize the funds, channelize them into developmental and infrastructural projects into the developing and underdeveloped countries. ठीक है. It's all about writing your answer in such a way that the examiner knows that this person can be a diplomat or an officer. ठीक है. हमें स्क्रैच से सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको थोड़ा बहुत आता है और एग्जामिनर को इतना ही जानना है बस. आपके थॉट प्रोसेस में वो मेच्योरिटी दिखनी चाहिए एग्जामिनर को. दैट इज योर एजेंडा. ओके. ब्रिक्स का क्या एजेंडा है वो क्लैरिफाई करना है. ठीक है. And then we need to of course fight for the rule based world order. ये नहीं कि यूएस के मन में आया तो भाई WTO appellate body में किसी को अपॉइंट ही नहीं किया, बॉडी डिफंक्ट हो गई है, चल रहा है, हम देख रहे हैं क्या ही हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है. So that is all that you need to know for BRICS. एक बार हम जल्दी से जरा देख लेते हैं कि हमें कैसे इस आंसर को फ्रेम करना है so that we can reach on the final conclusion कि हमने इस आर्टिकल से क्या डिराइव किया. आपको ब्रिक्स पर सवाल आएगा, रेलेवेंस ऑफ ब्रिक्स पर आ सकता है. यू कैन गेट अ क्वेश्चन ऑन एक्सपेंशन, वाज इट नीडेड, वाज इट नॉट नीडेड. यू कैन गेट अ क्वेश्चन ऑन वेदर ब्रिक्स शुड सस्टेन, है ना, वही रेलेवेंस वाली बात हो गई. ड्रॉबैक्स पे सवाल आ सकता है. तो एवरीथिंग दैट इज देयर दैट यू नीड टू राइट द आंसर इज देयर. ठीक है. रिसेंटली एक्सपेंशन हुआ है. जोहानिसबर्ग समिट के कुछ जो मेजर हाइलाइट्स थे, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि डिस्कस द रीसेंट हाइलाइट्स, द रीसेंट जोहानिसबर्ग समिट ऑफ ब्रिक्स दैट वाज रिसेंटली कंडक्टेड. ठीक है. तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए लोग जनरली रेडी नहीं होते हैं, बट वो भी आप रेडी हो जाएंगे. ठीक. तो मेजर इश्यूज. देन क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया. यू कैन जस्ट मेंशन कि अच्छा ये क्राइटेरिया है. फिर हम इंप्लीकेशन पे आएंगे और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस, कि ब्रिक्स प्लस का क्या सिग्निफिकेंस है. उसके बाद हम चैलेंजेस पे तो आ ही जाते हैं. सो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक, सो टाइटल देना, सब हेडिंग देना और दो तीन वर्ड्स में लिख के खत्म करना. ठीक है. कंसर्न्स ब्रिक्स को लेके आ ही जाते हैं. इंप्लीकेशंस फॉर इंडिया जरूरी नहीं है कि आप लिखें, बट इन अ 15 मार्कर यू कैन इंक्लूड इट इन द वे फॉरवर्ड कि इंडिया को क्या करना चाहिए. ठीक है. इंडिया को इसको लेके क्या करना चाहिए. एंड देन वे फॉरवर्ड में ब्रिक्स को क्या करना चाहिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन. सो that's all for today's article discussion. I hope you all found it relevant. Just read over the PDF. आई होप कि लेक्चर में आपको चीजें समझ में आई होंगी और फाइनल आप एक रूप देख पा रहे होंगे कि आपका ब्रिक्स का आंसर कैसा दिखना चाहिए. क्लैरिटी ऑफ थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस दैट यू नीड टू आस्क, डू ड्रॉप इट इन द कमेंट्स एंड we'll address that. Take care everyone. See you in the next lecture. Bye bye.